हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत आपका स्वागत करती हूं BTS न्यूज़ चैनल में। हर पल की खबर आप तक। आइए देखते हैं आज के समाचार। मजलिस पार्टी अध्यक्षुलु हैदराबाद पार्लमेंट सभ्युलु असदुद्दीन ओवैसी गारू, गौरवनीयुलु राष्ट्र होंशाख मंत्रिवर्युलु पेद्दलु मोहम्मद महमूद अली गारू, गौरव हैदराबाद शासन सभ्युलु पेद्दलु दानम नागेंद्र गारू, गौरव डिप्यूटी मेयर श्रीमती श्रीलता शोभन रेड्डी गारू, हैदराबाद नगर पोलीस कमिश्नर अंजनी कुमार सिन्हा गारू, मा MLC जाफरी गारू, मा चीफ इंजीनियर गौरवनीयुलु सुरेश कुमार गारू, अदे रకంగా ఈ స్థానిక జోనల్ కమిషనర్ అశోక్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులకి, వేదిక ముందున్న అధికారులకి, పాత్రికేయ మిత్రులకి, అందరికంటే ముఖ్యంగా ఈరోజు ఇక్కడ GHMC ఆధ్వర్యంలో నిర్మాణం చేయబడ్డ 288 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అందుకోబోతున్న మా సోదరులకి, సోదరిమణులకు, అక్క చెల్లెళ్లకు, అన్నదమ్ములందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా शुभाकांक्षलु नमस्कार తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను। आप सभी बहनों को खासकर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एक बहुत खूबसूरत और शानदार डबल बेडरूम फ्लैट आपको आज दिया जा रहा है। इस बात पे मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। పెద్దలు గౌరవనీయులు స్థానిక శాసనసభ్యులు బలాలా గారు, స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు అసద్ భాయ్ ఒక మాట ఏమన్నారు అంటే, హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలో హైదరాబాద్ పట్టణానికి నిజానికి ఈ ప్రాంతంలోనే బీజం పడ్డ విషయం మనకు తెలుసు। హైదరాబాద్ పట్టణం, హైదరాబాద్ నగరం అంటేనే నిజానికి చార్మినార్ అనే ఒక గుర్తింపు ఉన్న విషయం మనందరికీ తెలుసు।
ఈ ప్రాంతంలో మనకంటూ ప్రత్యేకమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగాలి అనే తపనతో గౌరవ శాసనసభ్యులు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని ఎన్నో సందర్భాల్లో కలిసినప్పుడు పదే పదే చెప్పడం జరిగింది. మా ప్రాంతంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కావాలి, మా ప్రాంతంలో రహదారుల నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయాల్సి ఉందో అవన్నీ కూడా చేసి తొందరలోనే మీ చేతికి అప్పచెప్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ పార్లమెంట్లోని పేద ప్రజలందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. దాంతోపాటు ఈరోజు ఇప్పుడే ఈ పిల్లి గుడిసెలు ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ స్లమ్ చూసిన తర్వాత, ఎందుకంటే నాకు బాగా గుర్తుంది, ఫౌండేషన్ కూడా నేనే వచ్చినాను. ఆ రోజున్న పరిస్థితి ఈ రోజున్న పరిస్థితి చూస్తే జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరక్ ఉన్నది. ఆ రోజు ఇక్కడ ఒక మనిషి ఇటుకెళ్ళట్టు పోదామంటే జాగలేదు. ఆ రోజు ఇక్కడ మంచినీళ్ళ గోస, డ్రైనేజ్ చక్కగా లేక బాధ, ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు. కానీ ఈరోజు అదే ప్రాంతానికి ఇక్కడికి వస్తే ఈ ఇల్లు చూస్తుంటే, ఇదే ఇల్లు కనుక ఒక ప్రైవేట్ బిల్డర్ కనుక కట్టుంటే ఒక్కొక్క ఇల్లు 50-60 లక్షల రూపాయలకు తక్కువ కాకుండా ఈ చౌరస్తాలో ఖరీదు బలికేదనే మాట కూడా నేను ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఆ जगह आप एक बार देखें इस बिल्डिंग को और यहाँ जितने भी मकान बने इनको, अगर आज एक प्राइवेट डेवलपर बनाता, प्राइवेट बिल्डर बनाता, कम से कम आपको इस चौरस्ते पे 50-60 लाख रुपए आपको देना पड़ता। पर आज तेलंगाना हुकूमत की तरफ से इतनी बड़ी प्रोग्राम जो है आज पूरे मुल्क में, पूरे भारत में कहीं भी नहीं हो रहा है। डबल बेडरूम नाम का प्रोग्राम आज कोई और राज्य में नहीं हो रहा है. మొత్తం చూసినట్టయితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 18,000 కోట్ల రూపాయలతో ఒక్క పైసా కూడా పేదవారు ఇచ్చే అవసరం లేకుండా ఒక్కొక్క ఫ్లాట్, ఒక్కొక్క ఇల్లు 50-60 లక్షల రూపాయలు విలువ చేసి ఇంటిని మీకు ఉచితంగానే మీ చేతిలో పెడుతున్నది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనే మాటని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. లోపల పోయిన తర్వాత, ఈ ఇంటి లోపలికి పోయిన తర్వాత, బిల్డింగ్ లోపలికి పోయిన తర్వాత మమ్మల్ని ఆహ్వానించినారు. आप तमाम भाइयों से बहनों से एक ही गुजारिश है, इतना अच्छा एक सहूलत आपके लिए बना के हुकूमत दे रही है. आप तमाम भाइयों से बहनों से, जैसा अभी आपके एमएलए साहब ने कहा, इसको हमारी गुजारिश है कि आपसे एक है कि इसको साफ सुथरा रखिए. यहाँ पे जो है फिर गंदगी या बदबू अगर यहाँ फिर जमा हो गई तो अपने ही बच्चों को तकलीफ होगी. आज आप देख रहे हैं कोरोना एक तरफ, डेंगू एक तरफ, वायरल फीवर एक तरफ, ये सब चल रहा है, इसका आज दौर चल रहा है. तो मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूँ, यहाँ पे एकदम साफ सुथरा इसको रखिए. और अभी यहाँ पे प्लांटेशन भी किया गया, इसको भी आप मेंटेन करिएगा, इसको भी आप बचा के रखिएगा, क्योंकि जितना हम अपना यहाँ पे पौधे और ये झाड़ बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है. और हमारे असद भाई ने ये भी कहा कि मूसी पे भी आपको एक इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा. हम उस काम में भी अभी थोड़ा कुछ काम शुरू कर चुके हैं. हम लोग STPs बना रहे हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक 335 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इसी बीच में हमने उसका फाउंडेशन भी किया. और बाकी भी जो है सीवरेज ट्रीटमेंट उसको भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे. और मूसी पे एक ब्रिज की जो बात की गई उसका भी थोड़ा प्लानिंग चल रहा है, बहुत ही जल्द उस पर भी कुछ कार्रवाई शुरू हो जाएगी. మళ్ళొకసారి నేను మీ అందరికీ చేసే విజ్ఞప్తి, ఇంత మంచి బహుమతి మీకు ప్రభుత్వం ఇచ్చినప్పుడు 1 లక్ష డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఈరోజు దాదాపు 9,700 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి హైదరాబాద్ ప్రజలకు అందజేస్తున్నప్పుడు, భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రము చేయని విధంగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఫ్లాట్లను, ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్లను చక్కగా కాపాడుకోవడం, వీటిని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, ఇక్కడ మంచిగా మొక్కలు పెంచుకొని పిల్లలకు కానీ మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ ఎలాంటి జబ్బులు రాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద కూడా ఉన్నదనే విషయాన్ని మళ్ళొకసారి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ, 141 మంది గతంలో ఈ పిల్లి గుడిసెల ప్రాంతంలో ఉండేది. మొదలు వాళ్ళకి ఇలా మీకు మీ ఎమ్మెల్యే గారు, మీ గౌరవ మేయర్ గారి చేతుల మీదుగా नमस्कार. सदर जलसा ऑनरेबल मिस्टर MAUD इंडस्ट्रीज IT डायनामिक लीडर जनाब KT रामाराव साहब, ऑनरेबल MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मुखानी MLA जनाब बराला साहब, खैरताबाद MLA जनाब नागेंद्र साहब, मेयर साहबा, डिप्टी मेयर साहबा, हैदराबाद कमिश्नर अंजनी कुमार साहब, ऑनरेबल MLC जाफरी साहब और हमारे बहुत कारपोरेटर्स और बहुत से भाई बैठ पर बैठे हुए इस प्रोग्राम में आए हुए मेरे भाइयों बहनों और मीडिया फ्रेंड्स. यकीनन तेलंगाना बनने के बाद
हमारे आनंद सीएम साहब ने जितने स्थल में हुए वहाँ पर डबल बेडरूम बना रहे हैं। 1 लाख बेडरूम का टारगेट हैदराबाद में दिया गया है और काफी करीब कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर ओल्ड सिटी में खासतौर से चंचलगढ़ में 288 डबल बेडरूम बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए आनंद सीएम साहब ने 250 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। और खासतौर से तेलंगाना बनने के बाद सारे तेलंगाना के आवाम को खुशियां नसीब करने वाले लीडर है तो केसीआर साहब है। और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर केटीआर साहब बहुत डायनेमिक मिनिस्टर है, बहुत काम करते हैं। आप देखते हैं कोरोना में भी हैदराबाद में राहतों में रोड डाले गए और हर तरीके से काम किया गया। उसी तरह हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने खासतौर से साबिका में जो गरीब लोगों को, उम्र रसीदा लोगों को 200 रुपये पेंशन दिया करता था, आज उन्हें 2016 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। हैंडीकैप लोगों को 500 रुपये मिलते थे, उन्हें आज 3016 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। खासतौर से मैं तमाम यहाँ के भाइयों बहनों से अपील करता हूँ कि ये लिमिट 65 साल से अब 57 साल कर दी गई है, तो जो लोग बच्चे पीछे और जरूर अप्लाई कीजिए, उन्हें भी पेंशन दिया जाएगा। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के अंदर खासतौर से हैदराबाद में अमन कायम करने के लिए हमारे आनंद सीएम साहब ने बड़ी जद्दोजहद की है। उसके लिए लोगों में डर था तेलंगाना बनने के वक्त कि लोग तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर कैसा कंट्रोल होगा, नक्सलिज्म कैसा खत्म होगा। आज तेलंगाना से नक्सलिज्म का खात्मा करने वालों को लीडर है तो केसीआर साहब है। तेलंगाना में हैदराबाद एक भी किसान नहीं है, लोग अमल से रहते हैं। हमारे आनंद सीएम साहब ने पेट्रोलिंग के लिए खासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट में के बाद 700 करोड़ रुपये सैंक्शन किए। आप जानते हैं यहाँ पर भी झगड़ा होता है, 100 डायल करने पर 5 से 10 मिनट में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और पुलिस फ्रेंडली काम कर रही है। शील्ड बनाए गए औरतों के लिए, खासतौर से महिला के लिए भरोसा सेंटर बनाए गए। मैं समझता हूँ किसी हिंदुस्तान में किसी जगह पर ये नहीं है। और खासतौर से हमारी महिला बहनों के लिए जो जिसके डिलीवरी होते हैं, हमारे पास जो साबिका में 15-20% से ज्यादा लोग सरकारी दवाखाने में डिलीवरी नहीं कराते थे, आज सरकारी दवाखाने में तकरीबन 50% करीब लोग डिलीवरी करवा रहे हैं। और उसके लिए केसीआर किट दिया जाता है, जिसके लिए अगर लड़का पैदा होता है तो 12,000 देते हैं, लड़की पैदा होने पर 13,000 देते हैं और साथ में केसीआर किट भी देते हैं। यकीनन केसीआर साहब शुरू आदमी की मदद करने वाले को लीडर है हिंदुस्तान में तो केसीआर साहब है। यकीनन हम कांग्रेस पार्टी जिस तरह काम कर रही है, खासतौर से मजलिस के साथ मिलकर सारे लोगों में देखा जाता है सारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी तरीके से काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है तो तेलंगाना में हो रहा है। इसलिए मैं खासतौर से डबल बेडरूम पर तमाम यहाँ के लोगों को, हमारे बलाला साहब को मुबारकबाद देता हूँ। काफी उनकी कोशिश रही और सबसे ज्यादा हमारे केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने काफी बड़ी सैंक्शन 250 करोड़ रुपये सैंक्शन किए इस कॉम्प्लेक्स के लिए। और यहाँ पर कार मेंटेनेंस के लिए ये बढ़िया बनाई गई ताकि इसके किराए से तो बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो साबित है। तो यहाँ के जो लोगों के बेडरूम अलग है डबल बेडरूम, उसे यही कहता है इसकी कीमत हुकूमत की तरफ से 9 लाख रुपए के बेडरूम पर खर्चा किया गया, मगर मार्केट के अंदर ये 50 लाख 60 लाख की खदानी की कीमत है। उसके लिए किसी को भी 1 पैसा देना नहीं पड़ता, तो हुकूमत की जानिब से मुकम्मल फ्री प्रोवाइड किया गया है। उसके लिए मैं हमारे आनंद सीएम साहब का, आनंद केटीआर साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे असद भाई को भी मुबारकबाद देता हूँ, वो हमेशा गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, पुराने शहर के मसाइल पर आवाज उठाते हैं। दूसरे विषय सुनने वाले जो लीडर है तो हमारे केटीआर साहब है और केसीआर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, जो पुराने शहर को भी खुशहाल और तरक्की याफ्ता देना चाहते हैं। इसके लिए मैं तमाम भाइयों बहनों को जिसको डबल बेडरूम मिले उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता है। और हुकूमत का, हमारे यहाँ के एमपी साहब का, MLA साहब का और खासतौर से हमारे मिनिस्टर साहब का और मेयर साहब का, डिप्टी मेयर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे वोट दिया गया उसका शुक्रिया। वज़ीर दाखिला शहर हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर साहिबा, जनाब मोहतरम दानम नागेंद्र साहब रुकन असम्बली, मुतालिका रुकन असम्बली जनाब अहमद बराला साहब, शहर हैदराबाद के कोतवाल और कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब अंजनी कुमार साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, यकीनन ये बड़ी खुशी का दिन है कि 2016 में मौजूदा चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने यहाँ पर आकर इस मुकाम का मायना किया
और उसी वक्त ये फैसला दिया कि यहाँ पर 2 BHK के हाउसिंग की स्कीम का आगाज़ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज पाए तकमील को पहुँचा और जो लोग यहाँ पर बरसों से इस मुकाम पर झोपड़ियों में रहते थे, पहले उनको वो हैंड ओवर कर दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में, उनके रोज़मर्रा के कामों में उनको खुद जब उनका एक 2 BHK का फ्लैट मिलेगा तो यकीनन उन गरीबों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उनके बच्चों को तालीम का मियार और उन तमाम मिस्र रहने वालों की सेहत भी अच्छी रहेगी। मैं दूसरी बात जो KT रामाराव साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो आज यहाँ पर आए और इसका इफ्तिताह किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी पार्टी की जानिब से बल्कि पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की जानिब से दोबारा अपनी इस बात को आपके सामने दोहराता हूँ कि चंचलपुरा जेल को आप यहाँ से शिफ्ट करिए और उसको कहीं पर आप सैबराबाद में या रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की बात को पहुँचाइए और चंचलपुरा जेल को यहाँ से शिफ्ट करिए ताकि उस जगह पर उसको और बेहतरीन तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सके। मजलिस ने इस बात का गवर्नमेंट से भी मुतालबा किया कि उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग को बनाया जाए, क्योंकि उस्मानिया हॉस्पिटल की मौजूदा बिल्डिंग बिल्कुल खस्ता हालत में है और पुरानी बिल्डिंग तो उसको बंद भी कर दिया गया और मौजूदा दौर में यहाँ पर हमने बड़े मसाइब और मुश्किलात के दौर का सामना किया। बड़ी बहादुरी से हमने उसका मुकाबला किया कोविड की वेव में। तो मैं हुकूमत से और TRS गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि उस्मानिया हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग को तामीर किया जाए, चाहे उसके लिए 500 करोड़ उन दो 700 करोड़ उसमें ज़रूरत पड़ेगी, मगर हमको उम्मीद है कि अगर चीफ मिनिस्टर अगर एक बात का फैसला ले लेंगे, जिस तरह एक तारीखी दलित बंधु स्कीम का उन्होंने आगाज़ किया, मुझे यकीन है कि इसी तरह उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का तामीर इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर खुद उस्मानिया हॉस्पिटल आकर उसका फाउंडेशन स्टोन लगाएंगे। तीसरी बात जो मैं KT रामाराव साहब के को याद दिलाना चाहता हूँ, और उन्होंने अभी यहाँ पर बल्दिया के जो हाउसिंग डिपार्टमेंट के लोगों को सख्ती से कहा कि फलकनुमा पैलेस के पीछे फारूक नगर में करीब 800 इस तरह के 2 BHK हाउसेस का काम अभी ज़ेर तकमील है, जंगममेट में और बल्लागुड़ा में। तो हमारे मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है, उनको बताया कि इस साल दिसंबर तक इंशाअल्लाह ताला वो आकर फारूक नगर, जंगममेट और बल्लागुड़ा में भी 2 BHK का काम वो पूरा मुकम्मल होगा और वहाँ पर जो मुस्तहीक़ीन गरीब अफराद हैं उनको दिया जाएगा। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सैयद साहब के बारे में भी इसी तरह हाउसिंग का एक काम हो चुका है और जियागुड़ा कारवान में भी वहाँ पर भी हाउसिंग का काम हुआ है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के को एक मिसाली पार्लिमानी हल्का बनाया जाए। गलगोंडा से फ्लाईओवर का काम चल रहा है, ब्रिज का भी एक काम है, वो भी हमारे मिनिस्टर साहब ने उसका रिव्यू मीटिंग में नोटिस किया और इंशाअल्लाह ताला वो काम होगा। मैं राम साहब को दोबारा जो उनकी पर्सनल उनका एक सजेशन रहा, उनका एक प्रपोजल है कि गांधी समाधि से लेकर मूसा नदी के किनारे एक रोड डाला जाए ताकि वो जाकर नागौर में ख़त्म हो। मैं इसका भी जनाब राम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द उसका जो भी DPR है काम हो जाएगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर गांधी समाधि लंगर हाउस से लेकर अगर को रोड मूसा नदी के किनारे से होते नागौर तक पहुंचेगी तो इस इलाके के अवाम का एक बहुत बड़ा इसमें फ़ायदा हो जाएगा। मैं बहरहाल जनाब KT रामाराव साहब का, मैडम मेयर का, डिप्टी मेयर मैडम का, जनाब महमूद अली साहब का, हमारे दानम नागेंद्र साहब जो हमारे पुराने दोस्त हैं, माशाल्लाह मोटे भी हो रहे, दुबले नहीं हो रहे, तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, रूलिंग पार्टी में है मोटे ही होना। साहब तमाम का शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर में जो रिव्यू काम हो रहा है वो इंशाअल्लाह ताला जो काम टारगेट दिए KT रामाराव साहब उसको मुकम्मल करेंगे। हमारे CP साहब का, आपके पुलिस टीम का भी शुक्रिया कि हमारे शहर के इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अमन भाईचारा है।
छोटे मोटे मच्छर कीड़े मकोड़े रहते, चीख पुकार करते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अमन रहा और हम तमाम ने मिलकर यहाँ पर इस अमन को और मजबूत करना है ताकि ये हमारा शहर का हिस्सा, हमारा शहर, हमारी रियासत ना सिर्फ पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इसका एक नाम हो। एक फखरुल मिसाल के तौर पर इसको बताया जाए कि ये शहर हैदराबाद की तहजीब, इसका तमद्दुन है, यहाँ का भाईचारा है और इसके लिए यकीनन क्रेडिट देना पड़ेगा TRS की गवर्नमेंट को। वाक़िर उदावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गुजारिश करूँगा कि दौलत इस्तेमाल करिए और बराला साहब का भी यहाँ के MLA हैं मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के और दीगर अफराद का भी गैर मुकदम इस्तेमाल करिए। खड़े रहेगा अंदर स्वागतम पलकंडी, घना स्वागतम पलकंडी। शजरकारी का प्रोग्राम किया जा रहा है। जनाब बैरिस्टर रफीक नईमी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हाथों से शजरकारी की जा रही है। MLA के हाथों से शजरकारी का प्रोग्राम किया जा रहा है। और कमिश्नर ऑफ पोलीस अंजनी कुमार गाరికి ఇచ్చేశారు, వారికి స్వాగతం। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जनाब होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब और मेरे साथी MLA जनाब नागेंद्र साहब, मेयर साहबा और कॉर्पोरेटर्स, दोस्तों, बहनों, नौजवान साथियों, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं तो गुज़िश्ता में यहाँ पर जिस किस्म से छोटे मकान और झोपड़ी वगैरह यहाँ पर थी, तो यहाँ पर हमेशा यहाँ के जो भी रहने वालों को हमेशा जेल डिपार्टमेंट से खतरा रहता था। जेल डिपार्टमेंट से हमेशा इनको तकलीफ हुआ करती थी। हर थोड़े दिन को जेल डिपार्टमेंट इनको आकर हटाना करना, क्योंकि वो लैंड का क्लेम जेल डिपार्टमेंट या लैंड का क्लेम करता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग बड़ी तकलीफ के अंदर यहाँ गुजर रहे थे। उसके बाद जब जेल वाले यहाँ की रोड बंद कर जो रास्ता यूज करने जेल के अंदर ले लिए और साइड से रास्ता दिए, तो हमने जाकर ये तमाम तफसीलात अफसर साहब के सामने रखी। तो सदर साहब ने कहा कि आप एक ही सूरत के अंदर ये रास्ता बंद कर सकते हैं, ये जमीन के ऊपर जो आपका क्लेम है ये GHMC को हैंडओवर करना चाहिए ताकि हम गरीबों के लिए इसमें घर बना सकें। तो इसलिए जेल डिपार्टमेंट ने 10,000 गज जमीन उसी वक्त GHMC के हैंडओवर करी और GHMC ने उसके ऊपर और वो रास्ता उन्होंने इस्तेमाल किया। और गुज़िश्ता ये काउंसिलर ने इससे पहले के कारपोरेट इंतखाबात से पहले KTR साहब ने यहाँ के प्रपोजल लेने के बाद फौरी तौर के ऊपर के बहुत अच्छी प्राइस जगह पर है और आकर MP साहब के साथ KTR साहब ने इसका यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाला और आज 5 साल 4.5 साल हुआ काम शुरू होकर 4-4.5 साल के अंदर ये 288 मकानात पूरे मुकम्मल हो चुके हैं। जिस वक्त यहाँ पर लोग जो रह रहे थे, जब जो बेनिफिशियरीज जो यहाँ पर लोग रह रहे थे, जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सर्वे किया
141 लोग यहाँ पर थे, 141 हाउसेज यहाँ पर थे। उन लोगों को जब पोजीशन सर्टिफिकेट देकर उन लोगों को इवैक्यूएट कराया गया। उसके बाद यहाँ पर जुमला 356 मकानों की मंजूरी हुकूमत ने यहाँ पर दी, लेकिन 288 मकान बने। उसके बाजू एक दौड़ी आ गई थी, उसकी वजह से वहाँ पर मकानात नहीं बन सके, इसलिए 288 मकान से 288 बने। इंशाल्लाह बाजू के भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर मेरी मलकपेट की आवाम की जानिब से KT रामाराव साहब का, असद साहब का, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कम वक्त के अंदर इतनी प्राइम जगह के ऊपर जो अपनी झोपड़ी के अंदर रहने के वास्ते भी उनको तकलीफ थी, आज उनको इतनी बेहतरीन हालत को एक फ्लैट का उनको मालिक बना दिया। न सिर्फ फ्लैट का मालिक बना दिया, बल्कि यहाँ पर 19 शॉप्स बनाए गए हैं। ये 19 शॉप्स किराए पर देंगे। GHMC के साथ मिलकर यहाँ पर जो रहने वाले हैं उनकी एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, ताकि उसके वास्ते ये बिल्डिंग को, अपार्टमेंट्स को पूरा मेंटेन कर सके। सेलर के अंदर पार्किंग दी गई है। ग्राउंड फ्लोर के अंदर यहाँ के लोग 200-400 लोगों की तकरीब करके शादी भी कर सकते हैं। यहाँ पर 21 का तमाम सहूलतें यहाँ पर फराहम की गई है। मैं एक बार फिर आप तमाम से कहूँगा कि इसका इस्तेफादा उठाइए, अच्छे से अपनी अपार्टमेंट्स को, अपनी बिल्डिंग को साफ रखिए, ताकि और लोगों को देखकर और हुकूमत को अगर से आप साफ रखेंगे, अच्छी रखेंगे, तो हमको और हुकूमत को ये होगा कि लोगों की जिंदगी एक जो अच्छी बेहतर हो रही है, उसके लिए और तेजी से इसके अंदर काम किया जाएगा। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। KT रामाराव साहब, गुजारिश करूंगा कि दौलत के बाद जाने भी है। ठहरो माँ, एक चाबी ले लो, उसमें से एक ले लो। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।